پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی عدالت میں انمول پیشی، ملزمہ کو عدالت میں ہتھکڑی بھی نہیں لگائی گئی۔ پولیس اہلکار مؤدبانہ انداز میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، راستہ بناتا رہا۔ وزیر داخلہ سندھ نے ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ملزمہ کے پولیس کو دھمکی آمیز وائس میسیجز بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اس بارے میں جان لیتے ہیں تفصیلات، بات کرتے ہیں بیورو چیف کراچی طاہا عبیدی سے۔ طاہا، یہ معاملہ تو اب کچھ نیا رخ اختیار کر رہا ہے، یہ ملزمہ اب پولیس کو دھمکا رہی ہے۔ بالکل، اس بارے میں ہم تفصیلات جانیں گے ہمارے بیورو چیف سے، لیکن آپ کو اس وقت اس واقعے سے متعلق آگاہ کریں کہ آج یہ ایک فوٹیج منظر عام پر آئی جس کے اندر ملزمہ بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ نہایت ہی کیجول انداز میں عدالت میں واک کر رہی ہیں، ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ ایک پولیس اہلکار ہے جو ڈرا سہما ہوا ان کے پیچھے واک کر رہا ہے، ان کو راستے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملزمہ اپنے ڈرائنگ روم میں ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف کراچی سے، لیکن آپ کو اس وقت صورتحال سے متعلق یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں۔ بغیر ہتھکڑی کے ایس او پیز کی، قانون کی دھجیاں اڑاتی ہوئی یہ ملزمہ جو کہ گرفتار ہوئی تو اس کے پاس سے بڑی مقدار میں خطرناک منشیات برآمد ہوئی ہیں، جس میں کوکین بھی شامل ہے، آئس شامل ہے اور خطرناک اللیگل ڈرگز یعنی کہ کچھ پلز بھی جو کہ نوجوانوں کو سپلائی ہوتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس ملزمہ کا نیٹ ورک صرف کراچی میں نہیں بلکہ پنجاب کے بھی کئی شہروں میں ہے، سندھ کے بھی کئی شہروں میں ہے، اور یہ پوش علاقوں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یہ ساری منشیات سپلائی کرتی ہے۔ اور اس خاتون نے اس واقعے کے بعد میں پولیس اہلکاروں کو دھمکانا بھی شروع کیا ہے، اور ان دھمکیوں کے وائس میسیجز بھی جی ٹی وی نیوز کو موصول ہو گئے ہیں۔ آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ کیسے ملزمہ پنکی نے پولیس کو دھمکایا۔ اور ہاں، سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے کہا کیا یار، ایویں ہی بچوں کو تنگ کرو گے، ٹھیک ہے اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں۔ میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ آپ کو بات کرنے سے پہلے اوپر دیکھ تو لینا چاہیے تھا، میں نے ڈان لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ مطلب اتنے سمجھدار ہو گئے پھر فضول بچوں والی باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ توبہ توبہ، کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا۔ پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، آپ بھی لگ جاؤ لائن میں۔ 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسی زور زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا، 15 سال سے پیچھے لگایا۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا، اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے، دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی۔ یہ میرے ساتھ یہ فالتو باتیں نہیں کیا کرے، یہ بچوں والے کام ہے جو آپ میرے ساتھ فضول باتیں کر رہے تھے۔ بالکل، آپ نے یہ وائس میسج سنا۔ یہ پنکی جو ملزمہ ہے منشیات کیس کی، پولیس کو دھمکا رہی ہے، پولیس کا مذاق اڑا رہی ہے، پولیس کو چیلنج کر رہی ہے کہ جیسے اسے کسی بھی قانون کا، پولیس کا، عدالت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ملزمہ اس قدر کانفیڈنٹ کے ساتھ میں پولیس کو دھمکا رہی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی ہوئی، جو کہ انمول سی پیشی ہے۔ ملزمہ کو عدالت میں ہتھکڑی بھی نہیں لگائی گئی۔ ایک پولیس اہلکار بھی دکھ رہا ہے اس فوٹیج میں جو کہ انتہائی ادب کے ساتھ ملزمہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، راستہ بھی دکھا رہا ہے۔ اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس کی تفتیش بھی اب شروع ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی ملزمہ نے پولیس کو دھمکی آمیز وائس میسیجز بھی کیے ہیں جو کہ جی ٹی وی نیوز نے ابھی آپ کو سنوائے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ ایک ملزمہ جو کہ منشیات کی بڑی مقدار کے ساتھ پکڑی گئی ہے، لیکن اسے قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، پولیس کا کوئی خوف نہیں ہے، عدالت کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ وہ چیلنج کر رہی ہے کہ جو اس کے خلاف بن پڑتا ہے وہ پولیس کر کے دیکھ لے، اور پولیس کو اس نے بچہ کہہ کے بھی مخاطب کیا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، اور آپ کے سامنے اس وقت صورتحال سے متعلق ہم نے اپڈیٹ پیش کیا ہے۔ اس کے اندر ایک فوٹیج بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں ملزمہ کی تصویریں بھی ہیں۔ آپ نے وائس نوٹ بھی سنا ہے جو کہ اس نے پولیس کو دھمکانے کے لیے بھیجا ہے، جس میں وہ پولیس کا نہ صرف تمسخر اڑا رہی ہے بلکہ ان کو
चैलेंज भी कर रही है, धमका भी रही है। ये आपने अभी वॉइस नोट सुना है जो कि GTV न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी मनशियात फरोश है जो कि पकड़ी तो गई है, लेकिन उसे पकड़े जाने के बाद में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। अदालत में भी वो ऐसे चलती हुई आई जैसे वो अपने किसी घर के किसी हिस्से के अंदर चहलकदमी कर रही हो, और इस मौके पर उसको प्रोटोकॉल के तहत हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी, जो कि एक कानूनी खिलाफ वर्जी है। इस पर भी जो है वो सवाल बनता है और जवाब भी इसका मिलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुल्जिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस भी ले लिया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बड़ी ड्रग डीलर जो पिंकी है, इसने पुलिस को धमकाने के लिए धमकी आमेज वॉइस मैसेज भी भेजा है, जो कि इस वक्त GTV न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया है। GTV न्यूज़ को ये वॉइस मैसेज भी मौसूल हुआ है और इस वॉइस मैसेज में पिंकी नामी ये मुल्जिमा पुलिस एहलकारों को धमकियां दे रही है, उनका मजाक उड़ा रही है, उनके ऊपर हंस रही है। और ये सूरत हाल है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। ये अदालती अहाता है जहां पर मुल्जिमा को जब लाया गया तो बगैर हथकड़ी के बाकायदा हाथ हिलाते हुए ये खातून जो है वो आराम से मुल्जिमा वॉक करती हुई आ रही है। और इस हवाले से इसने जो धमकियां दी हैं पुलिस एहलकारों को, एक मर्तबा आपको और सुनवाते हैं कि कैसे धमकियां दी गई और पुलिस का मजाक भी उड़ाया गया। आप भी सुने। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। आपने नाजरीन ने सुना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक मुल्जिमा जो कि एक बड़ी ड्रग डीलर है, बल्कि बैनो सूबाई गैंग्स की सरबराही कर रही है। इसके गैंग में नौजवान लड़के लड़कियां भी शामिल हैं जो ये सारी मनशियात बशमूल कोकेन, आइस, चरस और इलीगल पिल्स भी सप्लाई करती है। और इस घिनौने धंधे के अंदर ये जो एक औरत है वो इस वक्त कानून का मजाक उड़ा रही है, बल्कि चैलेंज कर रही है। साथ साथ पुलिस एहलकारों को धमका भी रही है, उनको चैलेंज भी कर रही है। बल्कि इस बात के अंदर, इस वॉइस नोट के अंदर ये एतराफी बयान भी शामिल है कि 15 साल से वो इस जुर्म में जो है मशगूल है और वो बाकायदा बता रही है कि 15 साल से मुझे ढूंढ रहे हो लेकिन पकड़ नहीं पाए। और इस हवाले से अपने आप को एक ब्रांड कह के, यानी कि क्रिमिनल ब्रांड कह के अपने आप को वो मुखातिब भी कर रही है, अपना जो है वो तारुफ भी करवा रही है बिला खौफ व खतर। ये वॉइस मैसेज आपने सुना जिसके अंदर एक मुल्जिमा है जिसको बताया गया है कि अनमोल उर्फ पिंकी इसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है, अदालत में पेश किया गया है। ये सूरत हाल उस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल इख्तियार कर गई जब आज ये फुटेज सरफेस की सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम न्यूज चैनल्स पे कि जब इसको अदालत में पहुंचाया गया तो ये बिला खौफ व खतर वॉक करती हुई बगैर हथकड़ी के आ रही है और एक पुलिस एहलकार सहमा हुआ इसके पीछे चल रहा है और इसको रास्ता भी दिखा रहा है जैसे वो इसका मातहत हो। इसने जो धमकी आमेज वॉइस मैसेज पुलिस एहलकारों को भेजा है वो हमने आपको सुनवाया और जो व्यूअर्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक मर्तबा फिर आपको यही वॉइस नोट एक मर्तबा फिर भी हम सुनवाएंगे और प्ले करवाएंगे। दोबारा सुने कैसे कानून को अपने पांव तले रौंद रही है और मजाक उड़ा रही है ये मुल्जिमा। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, ठीक है, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है।
रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची ताहा उबैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहा उबैदी, ये ऑडियो आपने भी सुनी होगी, ये पिंकी जिसका नाम अनमोल भी है, ये किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रही है? बिल्कुल, पिंकी की बात तो आपने सुनी, जो कहती है कि पुलिस की अकल घुटनों में है और वो जो है गिरफ्तारी का सोच भी नहीं सकते। ये खुला चैलेंज है कराची पुलिस को, और कराची पुलिस की चैलेंज के बावजूद भी तफ्तीश तो आपने देख ली है कि किस शान अंदाज में और किस प्रोटोकॉल में इस मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया। ये कोई आम मंशियात फरोश खातून नहीं है, बल्कि ये हाई प्रोफाइल एक स्टैंडर्ड की खातून है जो कि पंजाब से लेकर सिंध तक बड़ा मंशियात फरोशी का नेटवर्क चलाती है। इसके ग्रुप में लड़के और लड़कियां शामिल हैं और तालीमी याफ्ता लड़के और लड़कियां शामिल हैं, जो कि कराची में पार्टीज में, पोश इलाकों की डांस पार्टीज में और तालीमी इदारों में आइस, क्रिस्टल, कोक और मंशियात जो दीगर पिल्स वगैरह हैं उनका आजादाना इस्तेमाल कराते हैं। ये ग्रुप बैरून मुल्क जो मंशियात फरोश है उनसे राब्ते में रहता है और उसके बावजूद यहाँ कराची में मंशियात की सप्लाई करता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यह फैसला किया गया था कि छोटे और बड़े मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी हसास इदारे ने कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ खवातीन को हिरासत में लिया था और उसकी निशानदेही पर इसको गिरफ्तार किया गया। आज साउथ जोन पुलिस के हवाले किया गया इस मुलजिमा को, और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन का हाल ये था कि जो पुलिस ने इंटेरोगेशन चालान अदालत में जमा कराया उसे रद्द कर दिया गया और मुलजिमा को जेल कस्टडी कर दिया गया। ये प्रोटोकॉल गिलासेस लगा के खातून ऐसा लग रहा है कि सरकारी अफसर प्रोटोकॉल में अदालत में पेश हुआ है, और उसके बावजूद भी अब कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने और आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने इस तमाम तर मामले का लिया है और डीआईजी साउथ, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी सिटी को तलब किया है, एसआईओ और आईओ को भी तलब किया है, ताकि इस तमाम मामले की तहकीकात की जाए कि कहाँ पे कमी बेशी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक नाअहली है, एक निकम्मापन है पुलिस का, जिसकी वजह से जो खातून है उसका रिमांड भी पुलिस को नहीं मिल सका। इतना हाई प्रोफाइल केस को नजरअंदाज किया गया है। वक्त की एहसास इदारे की कोशिश थी, कार्रवाई थी जिसमें इस मुलजिमा को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी नाअहली का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से इसे जेल कस्टडी कर दिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो नाम बेनकाब हुए थे या ग्रुप के दीगर लड़के और लड़कियां बेनकाब हुए तो उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ठीक, ताहा एक और बात भी है कि इसी वॉइस मैसेज के अंदर अगर हम सुने तो वो बाकायदा एतराफ़ जुर्म कर रही है। 15 साल का उसने अपना करियर बताया है इस जुर्म की दुनिया के अंदर। यानी कि ये तो एक टेस्ट केस बन गया अब आला हुकाम के लिए कि अगर एक मुलजिमा 15 साल से इस धंधे के अंदर है और वो इस बात का इकबाल जुर्म भी कर रही है, तो अब इसको ये क्योंकि ये बेखौफ लगती है, इसका मतलब है कि पावरफुल है। तो अब पुलिस हुक्काम के लिए, अदलिया के लिए क्या कह सकते हैं हम ये बात कि ये टेस्ट केस है? जी बिल्कुल, ये पुलिस का इम्तिहान नहीं बल्कि वफाकी तहकीकाती इदारों का और सूबाई तहकीकाती इदारों का भी इम्तिहान है। कितना हाई प्रोफाइल केस है। कराची में जो नौजवान है ओवरडोज की वजह से जाबाक हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो पुलिस की या दीगर इदारे जो कराची में काम करते हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ, उनके जो है कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अगर मैं आपको बताऊं कि साउथ जोन में बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हुए, ओवरडोज की वजह से बच्चे एक्सपायर हुए और तालीमी इदारों में मंशियात का आजादाना और आम इस्तेमाल शुरू हुआ है। अभी सिंध असम्बली में एक इजलास हुआ था कायमा कमेटी का अमन अमान के हवाले से, जिसपे खास तौर पे मंशियात फरोशों के हवाले से बातचीत की गई थी। इसमें एमपीए फरियाल तालपुर, सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लग्गार और अपोजिशन लीडर भी थे, पुलिस के आला अफसरान, आईजी सिंध, कराची पुलिस चीफ और दीगर डीआईजी और एसएसपीज भी उस इजलास में मौजूद थे। और उस इजलास में ये फैसला किया गया था, ये मशवरा किया गया था और ये बताया गया था कि कराची में जितने भी तालीमी इदारों में जो तुलबा जेर तालीम है उन सबका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, जिस पर वजीर तालीम ने एतराज किया था कि सबका मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बावजूद भी जो मुलजिमा गिरफ्तार हुई है या इसका ग्रुप बेनकाब हुआ है, इसमें जो दीगर किरदार हैं उनको अब तक बेनकाब नहीं किया जा सका, जो कि मजबूत है, जो कि मुनज़्ज़म है, उनको फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। ना
बड़े पैमाने पर कराची में इस मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशन किया गया। इसके ग्रुप के नेटवर्क के दीगर लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो कि तमाम तर सूरत हाल पुलिस की कारकर्दगी या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवालिया निशान।